चलिए अब हम अगला केस देखते हैं जो कि ट्रांसफर नहीं माना जाता. This one is transfer of a capital asset. Please note all these transfer are of capital asset. I am reiterating it again and again. Normally when you get a question in your examination, the question would only name what the capital asset is or what the asset is. It is for you to decide whether it is a capital asset or not. If it is not a capital asset, then the question of computing the income under the head capital gains do not arise. So whenever there is a transfer of an asset which is given, please be very careful to see the first thing in the question as to what is it. Is it a transfer of a capital asset or is it a transfer of a general trading asset? Unless and until it is a capital asset, you don't need to compute your income under the head capital gains. Now, transfer of a capital asset by a holding company. Now, it does not say what do you mean by a holding company. So let me explain it to you. Now, this holding company can be either an Indian company or it can be a foreign company. There is no distinction which is there in terms of this kind of a thing. So if suppose tomorrow you have a company based out of US which has a subsidiary in India and the holding company gives an asset to the holding subsidiary company, it would be exempt from tax subject to the conditions which we discussed. So transfer of a capital asset by a holding company to its subsidiary. Now, there are two conditions attached to it. The first one is, please read through, please see through on the screen very carefully. Parent company मतलब जो कि holding company है वो, or its nominees hold subsidiaries whole share capital. सबसे पहली चीज ये है कि parent company. Please note for the purpose of this section, parent company would mean the immediate parent and subsidiary would mean the immediate subsidiary. तो मान लीजिए आपकी कंपनी A है और उसकी सब्सिडियरी है कंपनी B और B की सब्सिडियरी है कंपनी C, तो यहाँ पे आप A और B में जो ट्रांसफर होगा केवल वही इस सेक्शन में कवर होगा. अगर तो ट्रांसफर A से C को होता है, that is not covered here. It is to the immediate subsidiary. So the first condition is that the parent company or its nominees hold subsidiaries entire share capital. पूरा का पूरा 100% शेयर कैपिटल जो है सब्सिडियरी का वो या तो पेरेंट कंपनी या फिर उसके नॉमिनी होल्ड करते हैं. एंड टू, सब्सिडियरी इज एन इंडियन कंपनी. अब यहाँ पे मेरे को लेवरेज नहीं है, मतलब मैंने आपको ऊपर बोला था कि होल्डिंग कंपनी इंडियन भी हो सकती है फॉरेन भी हो सकती है, लेकिन जो सब्सिडियरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए. अगर एक बाहर की कंपनी है, मान लीजिए मेरे एग्जांपल में मैंने आपको बोला था कि एक यूएस एंटिटी है, अगर यूएस एंटिटी किसी नेदरलैंड एंटिटी को जो कि उसकी 100% सब्सिडियरी है इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर करती है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं होगा. द कंपनी, द ट्रांसफरी कंपनी, द सब्सिडियरी कंपनी हैज टू बी एन इंडियन कंपनी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ सब्सिडियरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी. अगर एक कैपिटल एसेट एक सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन इसकी भी दो कंडीशन है. होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी इज हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, समथिंग व्हिच वी डिस्कस्ड अबाउट. होल्डिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी. देखिए इसमें दो फर्क है. पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि जो ट्रांसफरी कंपनी है कौन था, सब्सिडियरी, तो सब्सिडियरी वाज सपोज्ड टू बी एन इंडियन कंपनी. In this thing, the holding company has to be an Indian company. I'll tell you what the reason is. Basically, भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जो एसेट है वो इंडिया से बाहर चली जाए बिना कॉरेस्पॉन्डिंग पैसा आए बिना. तो इसलिए जो भी रेसिपिएंट होगा, चाहे वो ऊपर वाले क्लॉज में था या इस क्लॉज में था, that has to be an Indian company. Unless and until the transferee is an Indian company, then this clause is not applicable. और इस क्लॉज का बेसिकली पूरा का पूरा आइडिया ये होता है, इसको जो एग्जेम्पशन इन्होंने दी है कि भाई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं. अगर 100% वो उसका होल्ड कर रही है तो एक तरह से वो आपस में उन्हीं लोगों का सामान है. और इक्विटी का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि अपने में, मतलब मैं अगर अपनी एक जेब से उठा के दूसरी जेब में पैसे डालूंगा उस पर कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगता.
Both the above clauses are not applicable to the transfer of a capital asset as stock in trade, because stock in trade is not a capital asset. So this is something which is very implicit in what we discussed above. चलिए अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस इज द केस ऑफ अमेलगमेशन. अगर अमेलगमेशन होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें किस हिसाब से आपका कैपिटल एसेट जो है ट्रांसफर वो एग्जेम्प्ट होता है. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ सेंस ऑफ इट, अमेलगमेशन में क्या होता है, दो कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं. मैं दो कंपनियों का एग्जांपल ले रहा हूं, वो दो से ज्यादा भी हो सकती है. तो मान लीजिए मेरे पास कंपनी ए है और कंपनी बी है. अब इसमें एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है. मर्ज हो जाने का मतलब है मिक्स हो जाती है, दोनों मिलकर आपस में सिंगल कंपनी बन जाते हैं. तो उस केस में मेरा क्या होता है कि अंडर द लॉ, जस्ट टू इंश्योर, इस चीज को देखने के लिए कि जो भी ये दोनों कंपनियों का मर्जर हो रहा है इस पे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी ना आए, लॉ में ये प्रोवाइडेड है कि आपका अमेलगमेशन जो है इट शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. द आइडिया इज टू मेक देम टैक्स न्यूट्रल. So therefore there are certain benefits which are given under this case. So let me see the first one. The first one is capital asset transfer by the amalgamating company to the amalgamated company if the amalgamated company is an Indian company. सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कंपनी मर्ज हो जाती है, जो कंपनी खत्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं amalgamating company, ING, amalgamating company. Amalgamating company is the company which goes and merge and goes out of existence. So if in my example B got merged into A, B is the amalgamating entity. Transfer of a capital asset by the amalgamating entity, obviously जो कंपनी मर्ज हो रही है उसी के सारे एसेट जाके दूसरी वाली में मिल रहे हैं, तो ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट वही होगी जो ट्रांसफर करेगी कैपिटल एसेट, क्योंकि दूसरी कंपनी तो बची ही नहीं. बाय द अमेलगमेटिंग कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी इफ द अमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी. तो अगर तो मेरे एग्जांपल में ए जिसमें बी मर्ज हुई है वो एक इंडियन कंपनी है, कोई भी कैपिटल एसेट जो बी ट्रांसफर करेगी अंडर द अमेलगमेशन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स. This is the simplest of the things. Now we move on to the next one. Transfer of a capital asset being shares held in an Indian company by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company. अब मान लीजिए कि A और B दो फॉरेन कंपनी है. ओके, B जो थी उसके पास एक इंडियन कंपनी है C, उसके शेयर्स पड़े हुए हैं. बी ने बिकॉज मर्ज हो गई तो सारे के सारे एसेट बी के ट्रांसफर होके ए के पास चले गए. तो क्या हुआ, जो ये शेयर्स थे कंपनी इंडियन कंपनी के वो भी ट्रांसफर होके ए के पास चले गए. वो एग्जेम्प्ट है कैपिटल गेन्स टैक्स से, लेकिन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है. एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन इट्स शेयर होल्डर्स एंड सच ट्रांसफर does not attract capital gains tax in amalgamating companies country of incorporation. अगर तो बी के 25% शेयर होल्डर जो हैं बाय वैल्यू वो ए के शेयर होल्डर बन जाते हैं, देन एंड अगर इस अमेलगमेशन पे जिस कंट्री में ये अमेलगमेशन हो रहा है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो अमेलगमेटिंग कंपनी है, जो बी है मेरे एग्जांपल में, उस कंट्री में इस अमेलगमेशन पे कोई टैक्स नहीं लगता. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो तब इंडिया उसको टैक्स नहीं करेगी. एनी सच ट्रांसफर इज नॉट लायबल टू टैक्स इन इंडिया. सो व्हाट हैपेंस, देयर आर टू फॉरेन कंपनीज, वन फॉरेन कंपनी गेट्स मर्ज्ड इनटू द अदर. द फॉरेन कंपनी व्हिच गेट्स मर्ज्ड होल्ड्स शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी. Such a transfer of shares of Indian company under the amalgamation process of foreign company will be exempt provided one, B के 25% शेयर होल्डर जो है वो A के शेयर होल्डर बन जाए और इस ट्रांसफर पे उस कंट्री में जहां बी इनकॉर्पोरेटेड है वहां कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता हो. Transfer of a capital asset by amalgamating banking company to banking institution which is sanctioned by government under 45(7) of the Banking Regulation Act. You just need to remember this
if there is such a kind of a transfer where a capital asset is transferred, that is also exempt from tax. अभी हम नेक्स्ट केस देखते हैं जो कि है मेरा ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर. जस्ट लाइक मर्जर इज द मैरिज ऑफ टू कंपनीज, मर्जर में जैसे दो कंपनियां इकट्ठी हो जाती हैं, डीमर्जर में अगर एक कंपनी में दो बिजनेस हो तो वो एक बिजनेस अपनी उठा के किसी और कंपनी को दे सकता है. और उसमें क्या होता है कि सपोज प्रीवियस एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए बी के पास दो बिजनेस थे, बी ने एक बिजनेस ट्रांसफर कर दिया ए को. अब ए क्या करेगा, ए अपने शेयर इशू कर देगा बी के शेयर होल्डर्स को, उसको हम डीमर्जर बोलते हैं. तो जस्ट लाइक मर्जर, जब बी डीमर्जर में क्या करेगा, कुछ एसेट ट्रांसफर करेगा, कुछ लायबिलिटी ट्रांसफर करेगा. तो इन एसेट वगैरह का जो ट्रांसफर होता है उस पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं, उसको हम अब देखेंगे, जैसे हमने अमेलगमेशन में ऊपर देखा था. सो ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी if the resulting company is an Indian company. तो अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है बी ने, बी इज व्हाट, द डीमर्ज्ड कंपनी, टू द रिजल्टिंग कंपनी. रिजल्टिंग कंपनी मतलब जिस एज ए रिजल्ट ऑफ विच गॉट द एसेट विच इज ए, is exempt from tax if the resulting company is an Indian company. ये काफी सिंपल है. अब हम नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं. मैं रीड कर रहा हूं इसको, तो प्लीज ध्यान दें स्क्रीन पे. ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, हमेशा की तरह ही एसेट कैपिटल एसेट होना जरूरी है. बीइंग अ शेयर और शेयर्स हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी बाय द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी टू द रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी. जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर ए और बी फॉरेन कंपनी होती और बी ने डीमर्जर में एक डिवीजन ट्रांसफर करी, उसमें कुछ शेयर्स भी थे इंडियन कंपनी के, तो अमेलगमेशन में वो एग्जेम्प्ट होता था. देयर वर सर्टेन कंडीशन. तो सच अ ट्रांसफर इज एग्जेम्प्ट अगर बी ए को कुछ शेयर्स ट्रांसफर करता है इंडियन कंपनी के, लेकिन उसकी एज आई सेड यूजुअल देयर इज अ कंडीशन. 3/4 in the value of shareholders of the demerged foreign company continue to remain the shareholders of the resulting foreign company. मतलब बी के 75% शेयर होल्डर्स जो है वो शेयर होल्डर बन जाने चाहिए ए में. Such transfers, please see second bullet, such transfer does not attract tax and capital gains in the country in which the demerged company is incorporated. Exactly same to what we saw in amalgamation. The only difference was that the transfer in that case was first amalgamation में पूरी कंपनी बी ही चली गई, डीमर्जर में कंपनी बी का एक डिवीजन चला गया.